This shows that how she has eaten the food. बहुत बढ़िया. Adjectives की डिग्रीज क्या क्या है? Positives, comparative and superlative. लास्ट वाला क्या हो गया? समझ आई बात? Adjectives. How are you all? Okay, great. Welcome back to the class. In continuation with the previous classes, we have been talking about the topic of parts of speech. And in parts of speech, we talked about nouns and pronouns and verbs. Today we will talk about adverbs. Today we will talk about adverb. Like the word adverb itself says, adverb. What is the word? Adverb. Adverb. What is verb? Action words. What is adverb? Adverb means that adds something to the meaning of verb. You can write this down. You can write this down. Okay, take your time. The part of speech that we are discussing today is adverb. And adverb is a word that adds something to the meaning of verb. Very nice. That adds something to the meaning of verb. Look, John is a boy. Be completely attentive. He plays hockey daily. As far as our previous discussions and previous classes, we have spoken about parts of speech, and in parts of speech we talked about nouns, pronouns, verbs, and today, got it? Now, if we will do a brief analysis of these two sentences, can any one of you tell me what is John in this sentence? No. Very nice. What is he? What is play? Excellent. So today our topic is adverb. Adverb is a word which adds something to the meaning of, which modifies a verb, changes its meaning. For example, if someone says, I eat, what do you understand he or she has done? When someone says, I eat food, what he or she has done? She has eaten food. Simple. But if she says that she eats food very fast, this shows that how she has eaten the food. How? This how is shown by adverb. How an action takes place is shown by adverb. An action takes place is shown by verb. And how that action is taking place or takes place is shown by adverb. I will try to make it easier. मैंने खाना खाया. आपको क्या पता चला इसमें क्या किया है मैंने खाना काम क्या किया है खाना खाया है. मैंने खाना जल्दी जल्दी खाया. अब कैसे खाया? ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? ये कैसे खाया मैंने खाना? ये कैसे आपको पता चला? कैसे वर्ड से. जब मैंने जल्दी जल्दी बोला तो आपको समझ आया कैसे खाया है. तो पहले जो काम हुआ था वो सिर्फ काम हुआ था, मैंने खाना खाया, आपको समझ आई बात, सर ने खाना खाया है. लेकिन जब मैंने कहा मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया तो आपको पता चला सर ने खाना कैसे खाया है. अभी कैसे हुआ है कोई काम? कैसे हाउ. This how is shown by adverb which adds something to the meaning of the verb. For example, मैं क्रिकेट खेलता हूं. आपको क्या पता चला मैंने क्या किया? मैं क्या करता हूं? क्रिकेट खेलता हूं. मैं क्रिकेट अच्छी तरह से खेलता हूं. कैसे खेलता हूं? ये अच्छी तरह से किसने दिखाया? एडवर्ब ने दिखाया ना. किस तरह से? यूजुअली जो वर्ड्स इंग्लिश में एल वाई से ऐड होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो एल वाई से ऐड नहीं होते, लेकिन जो भी वर्ड इंग्लिश में एल वाई से एंड होता है, किससे एंड होता है? जैसे हार्डली,
सेफली, क्विकली, फास्टली, है समझ आ रही है बात? स्लोली, लवली, ब्यूटीफुली, ये सारे एडवर्ब्स है। क्या है? क्या है? एडवर्ब क्या है? That adds something to the meaning of the verb. Verb क्या है? Which shows an Action. and when some words show how that action has taken place, that is adverb. Verb shows action. Verb shows action. Verb shows action. Now adverb shows how an action happened. कैसे हुई? कैसे? वो काम कैसे हुआ? वर्ब दिखाता है काम, लेकिन वो काम कैसे हुआ, कैसे किया गया, वो कौन दिखाता है? एडवर्ब दिखाता है। एडवर्ब क्या दिखाता है? एक्शन कैसे हुआ, काम कैसे हुआ, हाउ एक्शन हैज टेकन प्लेस। समझ आई बात? और यहां पे मैं एक चीज आपको समझा दूं, दिस इज प्लेस, दिस इज पैलेस। पैलेस हो गया महल, ठीक हो गया? Got it? So this is adverb. What is adverb? That adds something to the meaning of the verb. And in this particular sentence, John is a boy. John is what? Noun. He is, place is, Delhi is adverb. Slowly is adverb. Hardly is, softly is, quickly is. These are all adverbs. Got it? There are many adverbs which do not end with ly, but there are maximum of the adverbs which are end with ly. Last से आपको English point word असमुचो ly लेकिन साइज English point word adverb. क्या है? Got it? Next, if you want to jot it down, jot down means write down. Jot down मतलब को write down. It's the same thing. If you want to jot it down, write it down, you can write it. Good? Done? Move to next. After that, as far as our parts of speech are concerned, we talked about nouns and pronouns and verbs and adverbs, and now we will talk about adjectives. We will talk about adjectives. The words which qualify or describe nouns. The words which qualify or describe nouns. Got it? What are adjectives? The words which qualify or describe nouns. Got it? What does that mean? Qualify. Qualify means John is a boy. Got it? He is a good boy. He runs daily. Understood? John is a he is a good boy. He runs daily. 3 sentences. Who is John? Very good. John is noun as far as word is concerned. Now this he is, this good is adjective. Daily is adverb. These are the parts of speech that we talked about. This adjective actually describes, which describe a noun or qualify nouns, which qualify a noun. Do you understand? For example, Mehdi sir is tall. Mehdi sir is a noun, and his adjective is he is tall. Okay, Mehdi sir. Okay, Ali Mohammed sir. Kifaya sir. Got it? If we say Kifaya sir is 5 feet, how much feet? How many feet is Kifaya sir? 5 feet. Ali Mohammed sir is 7 feet. Mehdi sir is 9 feet. For example, just trying to make you understand. Got it? Now, if we say Kifaya sir is 5 feet tall, how much feet? How many feet I am taking? How many feet I am tall? Kifaya sir is 5 feet tall. Now, Ali Mohammed sir is
7 feet tall. Now Mehdi sir is 9 feet tall. That means when we compare Kifayat sir with Ali Mohammed sir, who is taller? Ali Mohammed sir is taller than Kifayat sir. Kifayat sir is tall. Ali Mohammed sir is taller. Now who is the three, among the three, who is the tallest? Mehdi sir is the tallest. Now we can say Kifayat sir is tall, Ali Mohammed sir is taller, Mehdi sir is the tallest. Remember this. Mehdi sir is the tallest. Now this is Kifayat sir, this is Ali Mohammed sir, this is Mehdi sir. Now this Kifayat sir is tall, Ali Mohammed sir is taller. This is tallest. These tall, taller, tallest. These are the 3 degrees of adjectives. How many degrees? 3 degrees of adjectives. These 3 degrees of adjectives are called as positive, like I said, comparative, and third degree. Yesterday we talked about it. You remember this? Superlative. और यहाँ पे क्लास में मुझे समझ आ रही है, इसलिए जिसने याद रखा हुआ होता है वो बोलता है। कॉमन सेंस है, याद रखोगे, समझोगे, याद नहीं रखना है, समझना है, जो समझेगा वो बोलेगा। सिंपल। देयर आर नो ट्रिक्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है ग्रामर में। ग्रामर में समझना है, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और याद जो आप समझते हो ना चीजें, वो आप जिंदगी भर आपके साथ रहती है। जो चीज आप याद करते हो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ आप भूल जाते हो। मसलन अभी आप 11th 12th में हो, मैं आपको पूछूंगा अभी क्लास 6th में आपके इंग्लिश का तीसरा चैप्टर क्या था, नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने याद किया था। 8th में आपका साइंस का चौथा चैप्टर क्या था, नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने याद किया था। आपको याद नहीं करना है, चीजों को क्या करना है, समझना है। अंडरस्टैंड, कंप्रेहेंड द थिंग्स, डोंट ट्राई टू गॉटिफाई द थिंग्स ऑरली। कभी कभी याद भी करना पड़ता है, मगर मैक्सिमम कुछ करने एफर्ट करना है कि हम चीजों को समझे, ताकि जो चीजें हम समझते हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है, और जो चीजें हम याद करते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं। ठीक है, तुझे भूल जाना जाना। ठीक है, अब कितनी डिग्रीज है एडजेक्टिव्स की? एक सुपरलेटिव। एडजेक्टिव क्या होता है? The words which qualify the, okay, ये लब है ना, लब लबाए। ठीक है, ये कश्मीरी लब इसको बोलते हैं ना, दीवार, ये वाल इस चीज, ये मकान है, मकान का एक कमरा है, कमरे में अलग अलग चीजें हैं, इन अलग अलग चीजों का अपना एक नाम है। याद बना लब, याद क्या बनो पत्थर। हमें कश्मीरी तो आती नहीं, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, बहुत सारे बच्चों को फारसी आती है, अरबिक आती है, कश्मीरी नहीं आती। बदलना इसमें कौशल बोल क्या मंद ग अल्लाह ताला बचे सैनिस कौमस कर रहम। लिखमुत वोनमुत क्लास पढ़ो बड़ो बड़ो, यथ कौमस तब तबाही ना कर सहल कर, तिमन नीव तिहज जबान, तिहज लैंग्वेज ये तिमन नीव, सो कौम गो पाने तबाह। क्या करे, सब कुछ सीखना पड़ता है, मगर एट द सेम टाइम वी मस्ट नॉट फॉरगेट our own language। मादरी जबान जव सो पश्रावन कहें पर्पज खत क्या करो। बहरहाल मैं लब बोल रहा था, लब ये देवार ये देवार, अमुक नाव देवार, यमुक नाव ठीक ये बोर्ड क्युत कैसा है, ये वाइट अमुक एडजेक्टिव। ये लब किस थोड़ा माल खोलमत, ये माल अमुक एडजेक्टिव। ये खता Mehdi सरस समझ यह मे खता क्या। एनीवेज हो ये टिप से टिप स्विच, ये क्या बना, क्या बना स्विच, चलो ना स्विच। इट्स इंग्लिश वर्ड। हाउ मच इंग्लिश वी स्पीक, कितनी इंग्लिश बोलते हैं हम? बहुत सारी इंग्लिश हम डे टू डे कन्वर्सेशन जो हमारी होती है उसमें बोलते हैं, है ना। मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स होते हैं इसमें, हमने उनको अपने एक्सेंट में डाल दिया है, अपने हिसाब से बोलते। ये स्विच है, स्विच, ठीक है, हम स्विच बोलते हैं। एनीवेज ये स्विच वाइट है, कैसा है, ये इसके एडजेक्टिव है। कोई मोटा है, पतला है, ये इसके एडजेक्टिव है। कोई छोटा है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, बच्चों में से कोई काबिल है, वो उस बच्चे का क्या है, एडजेक्टिव है। मसलन मान लीजिए आप अरसलान एक बच्चा है, ये काबिल है, इंटेलिजेंट। अरसलान इस बच्चे का क्या है,
नाउन है ना, नाउन को क्या बोलते हैं? नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वो होता है एडजेक्टिव। अरसलान को क्वालिफाई कौन करता है? इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है अरसलान का? एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? खत्म हो गया एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अब एडजेक्टिव की तीन डिफरेंस, जो हमारी तीन डिग्रीज होती है, वो हमने कहा क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब आपको समझ आया? मसलन मैं खूबसूरत हूं, ये मुझसे खूबसूरत है, वो हम सबसे खूबसूरत है। मैं क्या हूं? खूबसूरत। पॉजिटिव। ये क्या है? मुझसे। देन मुझसे, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो तो मुशाबत करना, मुकाबला करना। दो उसका असल के मुझसे असल, ये मुझसे खूबसूरत है। दैट मीन्स व्हाट? ही इज बेटर देन मी, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, एंड दैट पर्सन इज इससे भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। समझ आ रही है बात? मैं क्या हूं? पॉजिटिव। ये बीच में क्या है? वो लास्ट वाला क्या हो गया? समझ आई बात? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या क्या है? पॉजिटिव्स, हाँ, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। समझ आ रही है बात? अब मैं आपको पूछूंगा, गुड का पॉजिटिव है गुड, इसका कंपैरेटिव क्या है? हाँ, है ना? हाँ, वेरी गुड। क्लैप्स करो अपने लिए, इनके लिए, अपने लिए नहीं, इनके लिए जो बोल रहे। जैसे देखो, हर एडजेक्टिव को आपको देखना होता है, हर एडजेक्टिव की डिग्री जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज होती है। गुड का ये याद रखना, गुड का पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव डिग्री। और बोलो, शाबाश, अल्लाह के वास्ते बोलो। बेटर क्या है इसका? बेस्ट क्या है? समझ आ रही बात? अब क्या है गुड की तीन डिग्रीज? गुड, समझ आ रही है बात? समझ आई बात? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स, उससे पहले एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? That adds something to the meaning of the verb. समझ आ रही है बात? इसी तरह से हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा। एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा द वर्ड्स। अब एडजेक्टिव्स की तीन डिग्रीज है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तीसरी डिग्री, सबसे बढ़िया, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। समझ आई बात? ओके, ठीक है।